कृपया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बीच में उपस्थित माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्रीगण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वेबकास्ट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े माननीय केंद्रीय मंत्रीगण एवं 16 सहकारी बैंकों के जमाकर्ता साथियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं आदरपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। आज हम बैंक जमाकर्ताओं के हित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको जानकारी होगी कि जब कोई बैंक कठिनाई में आ जाता है तो उस बैंक पर आरबीआई का प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है। ऐसे बैंकों में पूर्व की व्यवस्था जो थी उसके अनुसार बैंकों के जमाकर्ताओं को अपनी जमा धनराशि में से मात्र 1 लाख रुपया तक की राशि होती थी और उस राशि को भी प्राप्त करने में कई मामले में 8 से 10 वर्ष लग जाता था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सरकार ने कानून में संशोधन कर जमाकर्ताओं की जो बीमित जमा राशि को 1 लाख रुपया से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है और इस कानून में अतिरिक्त संशोधन भी किया गया है। इसके फलस्वरूप अब किसी बैंक पर आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपया तक की बीमित जमा राशि 90 दिन के भीतर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, जिनके मार्गदर्शन में सरकार द्वारा यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी से अनुरोध करूंगा वो आके अपना विचार व्यक्त करें। Honorable Prime Minister, Honorable Finance Minister, Honorable Ministers of State for Finance, Honorable Ministers and Ministers of State who are participating in this event from various locations, respected members of the audience who are presented here and the audience who are present in 16 different locations, depositors of various banks, ladies and gentlemen, it's my privilege to participate in this event today. And this is an important milestone in the evolution of protection of depositors in our country. In my remarks, I would like to highlight 4 points and I shall be very brief. The first point is that the theme of today's event, Depositors First, is a very important theme, and in fact, that is the guiding philosophy, that is the guiding overarching philosophy of the Reserve Bank of India in all its actions and in all its policies so far as banks are concerned. Our focus is to protect the resilience of the banks and, more importantly, to keep in mind the interest of the depositors uppermost in our mind, whether it is the banking regulations, whether it is our supervision methods, or it is any scheme that is announced by the Reserve Bank. Depositors' interest is always kept uppermost in our mind. The second point I would like to mention is that the entire deposit insurance facility in our country has traveled a long distance. But 2 significant milestones were achieved recently, which has already been pointed out by the Secretary Department of Financial Services. The first was in February 2020, whereby after 27 years, the amount to the depositors, the maximum amount was increased from 1 lakh to 5 lakhs. 1 lakh was fixed in 1993 and it was enhanced to rupees 5 lakhs in the year 2000 after a gap of 27 years. That is the first landmark development. The second landmark development was that the payment now has to be made within 90 days. On the 90th day from the time the Reserve Bank imposes certain restrictions on withdrawal of money, the deposit amount of 5 lakhs or the actual amount, whichever is
whichever, that is the deposit amount subject to a maximum of rupees 5 lakhs, the amounts will be paid. And consequent on these two legislative changes, the deposit, DICGC, which is entrusted with this responsibility of making the payments through the banks, it has now automated the claim receipt and settlement process. The entire technology has been leveraged and the entire process has been now automated. And I am happy to point out and to share this information that the first set of banks where 90 days got completed on 29th of November, all the claims were processed thanks to the cooperation extended by all the banks and in particular the public sector banks. I would like to express my appreciation and thanks to all the public sector banks and their managements. The third point I would like to mention is that deposit insurance, the payment of the deposit insurance amount should be seen, and we see it as a measure of last resort. Our effort is always to see that the banking sector remains robust. The banking sector, all the banks, all the banking institutions, they remain robust and resilient. And therefore, the RBI has been adopting a proactive strategy to strengthen the regulatory guidelines, to strengthen the supervisory methods, and to look at things which will ensure that going forward, the banks function in a very resilient manner. Just to give an example, we have come out with new governance guidelines for the commercial banks. We have constituted an expert committee for bringing about reforms in the urban cooperative banking sector. The report has been received and we will be taking action on that basis. So far as supervision is concerned, we are no more going by symptoms. We are now taking up root cause analysis. We are looking at business models of banks to see whether they are viable without, of course, interfering in the commercial flexibility which the banks must have for their success. The fourth point that I would like to mention, that in all these, the depositors themselves also need to be very discerning. It's very important to keep in mind that higher returns or higher interest rates are usually, I repeat, are usually associated with higher risks. So just because a bank is offering higher interest, the depositors themselves should be very careful before putting in money while chasing such high returns, because usually our experience is that high returns, high interest rates are associated with higher risks. I am not generalizing. There are institutions which are offering higher interest rate and which are viable, but depositors should always be very careful. And in the Reserve Bank, we have Depositors Awareness and Education Fund, and we are utilizing the amount available under that fund to create awareness and education among the depositors in this direction. The Reserve Bank remains committed to ensure that our banking system remains robust and resilient, but it has to be a joint effort. Every stakeholder, whether it is the management of banks, whether it is the board of banks, whether it is the various committees of banks, the audit committee, the risk management committee, the other committees of the bank, or any other regulatory authority that is associated. So therefore, it has to be a joint responsibility for all of us. In my last monetary policy statement last week on 8th of December, I had said that the country has demonstrated of working together during this entire pandemic, and India's moment has come where India can really become a growth driver for world economy. And that will be possible if all stakeholders in the banking system work together. Thank you very much. Namaskar. मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी, कृपया आप मंच पर आएं और अपना संबोधन दें। Respected Prime Minister, my ministerial colleagues on the dais and the ministerial colleagues who are in the various centers where depositors are having an interaction with them, Governor Reserve Bank, Chairman and EDs of the various banks, and most importantly, the depositors of the various banks who have come here today. It is today a very important day according to me,
both from the point of view of the depositors and also for the banking history of this country. We have shown, under the leadership of Honorable Prime Minister, a commitment to the depositors. Depositors and their interest has been kept high on the agenda all through Prime Minister Modi's governance between 2014 and today. It is shown in various different forms. One was to restore the health of the banks through the 4R principles, where depositors' interests have been kept in mind, taxpayers' interest has been kept in mind, and as a result today, the public sector banks' health has so improved that today they are able to raise money on their own in the markets. It indicates that depositors and their monies are safe in all our banks. Equally, from 2019, when there has been a lot of distressed calls and voices of depositors whose monies were lying because there was a regulatory control on the banks and they were not allowed to take their monies back. Their own money couldn't be taken out of the banks by them. It could be for health-related expenditure, it could be for a function in their houses, or it could be for building one additional room in their houses. They could not take the monies back. So on the direction of Honorable Prime Minister, we made it possible in February 2020 budget to increase the insurance amount from 1 lakh to 5 lakhs, so that normal middle class households who've put their hard-earned savings in banks get their money in due time. There were cases of people who had put their money in deposits and waited for 5 years, 6 years, 7 years and couldn't get the money back because either the bank had to be liquidated or some kind of amalgamation had to happen. So the wait for the depositor was for eternal, but banks had to wait for resolution to happen. So to get over that hitch, Honorable Prime Minister directed us, isn't there any other way in which you can give the hard-earned money back to the depositors? So in August this year, during the monsoon session of the Parliament, amendments were brought in which the Honorable Governor of Reserve Bank referred to, so that the money is given within 90 days period from the time Reserve Bank as the regulator brings in some control over banks which are in distress. And as a result, today we see banks which were put under restrictions have their depositors receiving 5 lakh each. And this is a major step, a sensitive step, a step which understands the difficulties of the middle class of India. The difficulties of the middle class of India is what Prime Minister had responded to when he said increase the insurance. Then when he said it is now difficult in spite of the 5 lakhs being increased for people to get the money in time. So this in fact is the main driving point. But more importantly, I'd like to add, we did not deal with it in a prospective way. Normally, most of these laws, and ideally most of these laws, are applied prospectively from the date when it gets passed from the Parliament and notification is given from then. But here we saw that some of the banks were over years waiting for resolution, and depositors in those banks were also not getting relief. So exceptionally, this time we've made it applicable retrospectively so that people who have put their money and are waiting for 5-6 years will also get the benefit. So the customer has been kept in mind, the middle class hard-earned money has been kept in mind, and depositors' interest has been kept in mind, and that is why not only for those who have been effective from the day the law has been passed, but also earlier, those who have been waiting for their monies have all been included. One last word, the approach of this government under the guidance of Honorable Prime Minister has been sensitive to the needs of the middle class.
You may think I'm saying something out of context here, but I will bring in the example of one of the projects launched by the government, sponsored by the government, the single window for affordable housing project called Swami. Today, again, because of the voices of distressed home buyers, all of whom had put their money in some projects so that they can have a house, and also took loans from the banks, were paying rents for their houses, ended up with neither the homes being given to them, but had to pay the EMI to the banks. For which, again, under the direction of the Prime Minister, sometime early 2020, we came up with a alternative investment fund mechanism which can fund these last mile completion for home buyers. I'm happy to say, Honorable Prime Minister, in this context, over 140,000 home buyers are getting their homes back because of that one single window project. And these middle class home buyers are across nearly 33 cities in this country. 243 such projects are coming to a conclusion because of the single window. All this only to summarize that the voices of the middle class are heard and the government is responsive, and I thank the Honorable Prime Minister for guidance and for the way in which these projects are found light of the day, and more importantly for the Honorable Prime Minister for giving us time today to share this moment of depositors' concern being addressed. Thank you very much. Jai Hind. मान्यवर, हमारे बीच में कुछ डिपॉजिटर्स जमाकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात एवं राजस्थान से यहाँ पधारे हैं और उनका विशेष अनुरोध है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उनको एक प्रतीकात्मक चेक का भेंट हो तो वो गौरवान्वित होंगे। सर, आपके अनुमति से मैं उनको बुलाना चाहूँगा। सर, श्री मनोज कुमार उमापति मिश्रा, वो कृपया आए मंच पर। ये सिटी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में इनका खाता इनके पत्नी के नाम से, मिसेस रागिनी मनोज कुमार मिश्रा जी। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमती सुहास नवार जी से। इनका भी खाता सिटी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में है। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमती वसुधा विनायक जोशी, जो श्री विनायक गोविंद जोशी के धर्मपत्नी हैं, वो उनके बिहाफ पर ये प्रतीकात्मक चेक ग्रहण करें। इसके बाद मैं अनुरोध करूँगा श्री अर्जुन रामदास जाधव, इनका मंथा कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में खाता था, वो कृपया मंच पर आएं। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमती सत्यभामा अर्जुन जाधव, इनका भी खाता मंथा कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में था। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा
श्री कृष्ण भगवान दास, इनका खाता गुरु राघवेंद्र कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटका में खाता था, वो कृपया मंच पर आएं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री नागराज भारती, गुरु राघवेंद्र कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटका। अगला डिपॉजिटर हमारे श्रीमती इंद्राणी एन, ये भी गुरु राघवेंद्र कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटका में इनकी खाता थी। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री बोंटाला श्रीधर बाबू, ये भी गुरु राघवेंद्र कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक थे। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री किरण चंद, ये इनकी पत्नी का खाता है, मिसेस कोमल किरण चंद सिपानी, ये कपोल कोऑपरेटिव बैंक गुजरात से हैं, इनकी खाता वहीं थी। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती स्वाति बहन, ये भी कपोल कोऑपरेटिव बैंक सूरत, इसमें उनके खाता धारक थे। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री नितेश नानावती, कपोल कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक, मिसेस दीना बेन नानावती जी के सुपुत्र हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री श्रवण कुमार शर्मा, जो सीकर राजस्थान सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक थे, वो कृपया मंच पर आए। सर, अनुरोध है कि ये डिपॉजिटर्स आपके साथ एक ग्रुप फोटो लेना चाहेंगे, आपकी अनुमति से। जल्दी जल्दी ले जाओ। सभी जमाकर्ता साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कृपया
हमें संबोधित करने का कृपा करें। मंच पर विराजमान वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी, आरबीआई के गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन और देश के विशाल बैंकिंग समूहों के सभी अधिकारीगण, अलग अलग राज्यों में अनेक स्थानों पर उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, वहां के सांसद, विधायक और वहां रहने वाले सारे डिपॉजिटर्स, हमारे सभी जमाकर्ता भाइयों और बहनों, आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बना है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है, उसमें डिपॉजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अभी आज यहां इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी 3 लाख और ऐसे डिपॉजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है और मैं खास करके हमारे देश को, हमारे जो मीडिया के साथी हैं, आज मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और मेरा अनुभव है, जब स्वच्छता अभियान चला रहा था, मैंने मीडिया के मित्रों को रिक्वेस्ट की, आज भी उसको वो बराबर मेरी मदद कर रहे हैं। आज मैं फिर से उनको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम जानते हैं कोई बैंक डूब जाए तो कई दिनों तक खबरें फैली रहती है, टीवी पर, अखबारों में। स्वाभाविक भी है क्योंकि वो घटना ही ऐसी होती है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बन जाती है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आज जब देश ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, एक बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है, डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि उसकी भी उतनी ही चर्चा मीडिया में हो, बार बार हो। इसलिए नहीं कि मोदी ने किया इसलिए करना है, ये इसलिए जरूरी है कि देश के डिपॉजिटर्स में विश्वास पैदा हो सकता है कुछ लोगों के गलत कारणों से, गलत आदतों से कोई बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा।
ये मैसेज से देश के जमाकर्ता में विश्वास पैदा होगा, बैंकिंग व्यवस्था पे भरोसा पैदा होगा और ये बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उनसे विकराल होने से बचा सकता है। लेकिन हम भली भांति जानते हैं, वर्षों तक हमारे यहां एक ही प्रवृत्ति रही कि भाई समस्या है, टाल दो, दरी के नीचे डाल दो। आज का नया भारत समस्या के समाधान पर जोर लगाता है। आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है। आप जरा याद करिए, एक समय था जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को अपना ही पैसा, ये पैसा उनका खुद का है, जमाकर्ता का पैसा है, उनका खुद का पैसा पाने में नाकों दम निकल जाता था। कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी और चारों तरफ जैसे हाहाकार मच जाता था। और ये बहुत स्वाभाविक भी था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है, खासकर हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, वो फिक्स इनकम वाले लोग हैं, उन लोगों के जीवन में तो बैंक ही उनका आसरा होती है। लेकिन कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तो सिर्फ इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं फंसता था, एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी ही फंस जाती थी। पूरा जीवन एक समय एक प्रकार अंधकार सा लगता था। अब क्या करेंगे? बेटे बेटी को कॉलेज की फीस भरनी है, कहां से भरेंगे? बेटी बेटी की शादी करनी है, कहां से पैसा लाएंगे? किसी बुजुर्ग का इलाज कराना है, कहां से पैसा लाएंगे? अभी बहन जी मुझे बता रही थी कि उनके परिवार में हार्ट का ऑपरेशन कराना था, कैसी दिक्कत आई और अब ये कैसा काम हो गया। इन सवालों का पहले कोई जवाब नहीं होता था। लोगों को बैंक से अपना ही पैसा ये प्राप्त करने में, निकलवाने में वर्षों लग जाते थे। हमारे गरीब भाई बहनों ने, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने, हमारे मध्यम वर्ग ने दशकों तक इस स्थिति को भोगा है, सहा है। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंकों के मामले में समस्याएं और अधिक हो जाती थी। आज जो लोग अलग अलग शहरों से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो इस दर्द, इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए ही हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ फैसले लिए, रिफॉर्म किया, कानून में बदलाव किया। आज का ये आयोजन उन फैसलों का ही परिणाम है। और मुझे बराबर याद है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और कोई बैंक में तूफान खड़ा हो जाता था तो लोग हमारा ही गला पकड़ते थे। या तो निर्णय भारत सरकार को करना होता था या उस बैंक वालों को करना था, लेकिन पकड़ते थे मुख्यमंत्री को। हमारे पैसों का कुछ करो हमारा। मुझे काफी परेशानियां उस समय रहती थी और उनका दर्द भी बहुत स्वाभाविक था। और उस समय मैं भारत सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करता था कि 1 लाख रुपया की राशि हमें 5 लाख बढ़ानी चाहिए ताकि अधिकतम परिवारों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन खैर मेरी बात नहीं मानी गई।
उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने ही किया, मुझे भेज दिया यहां। और मैंने कर भी दिया। साथियों, हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी, यानी उसको भी करीब 60 साल हो गए। पहले बैंक में जमा रकम में सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी। फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था, कोई समय सीमा नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। और इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के अकाउंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, यानी 2% को ही थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। 98% लोगों का जितना पैसा उन्होंने है वो सारा कवर हो रहा है। और आज डिपॉजिटर्स का लगभग, ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, आजादी का 75 साल चल रहे हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है, ये जो हम निर्णय कर रहे हैं ना, इससे 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह इंश्योर्ड है। 76 लाख करोड़ रुपया, इतना व्यापक सुरक्षा कवच तो विकसित देशों में भी नहीं है। साथियों, कानून में संशोधन करके, रिफॉर्म करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 डेज, 90 दिन, यानी कि 3 महीने के भीतर ये करना ही होगा, ये कानूनन तय कर लिया। यानी हमने ही सारे बंधन हम पर डाले हैं, क्योंकि इस देश के सामान्य मानव, इस देश के मध्यम वर्ग की, इस देश के गरीब की हमें चिंता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बैंक वीक हो जाती है, बैंक अगर डूबने की स्थिति में भी है, तो 90 दिन के भीतर जमाकर्ता को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। मुझे खुशी है कि कानून में संशोधन के 90 दिन के भीतर ही हजारों डिपॉजिटर्स के क्लेम सेटल भी किए जा चुके हैं। साथियों, हम सब बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, अर्थशास्त्री जो बात को अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं अपनी सीधी सादी भाषा में बताता हूं। हर कोई देश प्रगति चाहता है, हर देश विकास चाहता है, लेकिन ये बात हमें याद रखनी होगी कि देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है। और बैंकों की समृद्धि के लिए
डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित होना वो भी उतना ही जरूरी है। हमें बैंक बचाने हैं तो डिपॉजिटर्स को सुरक्षा देनी ही होगी और हमने ये काम करके बैंकों को भी बचाया है, डिपॉजिटर को भी बचाया है। हमारे बैंक जमाकर्ताओं के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी भरोसे के प्रतीक है। इसी भरोसे, इसी विश्वास को सशक्त करने के लिए बीते सालों से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हर प्रकार से सशक्त की गई है। जब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा। हमने कोऑपरेटिव की एक नई व्यवस्था की है, नई मिनिस्ट्री बनाई है। इसके पीछे भी कोऑपरेटिव संस्थाओं को ताकतवर बनाने का इरादा है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के रूप में विशेष व्यवस्था बनने से भी कोऑपरेटिव बैंक अधिक सशक्त होने वाले हैं। साथियों, दशकों दशक तक देश में यह धारणा बन गई थी कि बैंक सिर्फ ज्यादा पैसे वालों के लिए होता है। ये अमीरों की ही का घराना है ऐसा लगता था। जिसके पास अधिक पैसा है वही जमा करता है, जिसके पास बड़ा बिजनेस है उसी को जल्दी और ज्यादा लोन मिलता है। ये भी मान लिया गया था कि पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं भी उसी के लिए हैं जिसके पास पैसे हैं, धनी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। न ये व्यवस्था ठीक है, न ये सोच ठीक है। और इसको बदलने के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज किसान, छोटे दुकानदार, खेत मजदूर, कंस्ट्रक्शन और घरों में काम करने वाले श्रमिक साथियों को भी पेंशन की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। आज देश के करोड़ों गरीबों को 2-2 लाख के दुर्घटना और जीवन बीमा के सुरक्षा कवच की सुविधा मिली है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 37 करोड़ देशवासी इस सुरक्षा कवच के दायरे में आ चुके हैं। यानी एक प्रकार से अब जाकर देश के फाइनेंशियल सेक्टर का, देश के बैंकिंग सेक्टर का सही मायने में लोकतांत्रिकरण हुआ है। साथियों, हमारे यहां समस्या सिर्फ बैंक अकाउंट की ही नहीं थी, बल्कि दूर सुदूर तक गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की भी थी। आज देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की सुविधा पहुंच चुकी है। पूरे देश में आज लगभग 8.5 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने देश में बैंकिंग और वित्तीय समावेश को नई बुलंदी दी है। आज भारत का सामान्य नागरिक कभी भी
कहीं भी सातों दिन 24 घंटे छोटे से छोटा लेन देन भी डिजिटली कर पा रहा है। कुछ साल पहले तक इस बारे में सोचना तो दूर, भारत के सामर्थ्य पर अविश्वास करने वाले लोग इस बात का मजाक उड़ाया करते थे। साथियों, भारत के बैंकों का सामर्थ्य देश के नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ाए, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि रेहड़ी, ठेले, फेरी पटरी वालों को भी, स्ट्रीट वेंडर्स को भी बैंक से ऋण मिल सकता है? न उसने कभी सोचा, न हम भी सोच सकते हैं। लेकिन आज मुझे बड़े संतोष के साथ कहना है, आज ऐसे लोगों को स्वनिधि योजना से ऋण भी मिल रहा है और वो अपने व्यापार को भी बढ़ा रहे हैं। आज जब मुद्रा योजना देश के उन क्षेत्रों, उन परिवारों को भी स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था। आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारे यहां छोटी जमीन वाले किसान, और हमारे देश में 85% किसान छोटे किसान हैं, बहुत छोटा सा जमीन का टुकड़ा है उनके पास। इतने बैंकों के होते हुए भी हमारा छोटा किसान बाजार से किसी तीसरे से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा और इसका दायरा पशुपालक और मछुआरों तक हमने बढ़ा दिया है। आज बैंकों से मिला लाखों करोड़ रुपए का आसान और सस्ता ऋण इन साथियों का जीवन आसान बना रहा है। साथियों, अधिक से अधिक देशवासियों को बैंकों से जोड़ना हो, बैंक लोन आसानी से सुलभ कराना हो, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स का तेजी से विस्तार करना हो, ऐसे अनेक सुधार हैं जिन्होंने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में भी भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद की है। मैं बैंक के हर छोटे मोटे साथी को बधाई देता हूं इस काम के लिए कि संकट की घड़ी में उन्होंने लोगों को असहाय नहीं छोड़ा। जब दुनिया के समर्थ देश अपने नागरिकों तक मदद पहुंचाने में संघर्ष कर रहे थे, तब भारत ने तेज गति से देश के करीब करीब हर वर्ग तक सीधी मदद पहुंचाई। देश के बैंकिंग सेक्टर में जो सामर्थ्य बीते सालों में हमने विकसित किया है, उसी आत्मविश्वास के कारण देशवासियों का जीवन बचाने के लिए सरकार बड़े फैसले ले पाई। आज हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरी तो है ही, लेकिन भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत हम सब देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट का सबसे बड़ा लाभ अगर हुआ है तो हमारी बहनों को हुआ है, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को हुआ है। यह देश का दुर्भाग्य था कि आजादी के इतने दशकों तक हमारी अधिकतर बहनें, बेटियां इस लाभ से वंचित रही। स्थिति ये थी कि माताएं, बहनें अपनी छोटी बचत को रसोई में राशन के डिब्बे में रखती थी।
उसके लिए पैसा रखने की जगह वही थी, अनाज के अंदर रखे रखना। और कुछ लोग तो इसे भी सेलिब्रेट करते थे। जिस बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंक बनाए गए हैं, उसका उपयोग आधी आबादी न कर पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता थी। जनधन योजना के पीछे इसी चिंता के समाधान का भी अहम रोल रहा है। आज इसकी सफलता सबके सामने है। जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों बैंक अकाउंट में से आधे से अधिक बैंक अकाउंट हमारी माताओं बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। इन बैंक अकाउंट्स का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जो असर हुआ है, वो हमने हाल में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी देखा है। जब ये सर्वे किया गया, तब तक देश में लगभग 80% महिलाओं के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट था। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बैंक अकाउंट शहरी महिलाओं के लिए खुले हैं, लगभग उतने ही ग्रामीण महिलाओं के लिए भी हो चुके हैं। ये दिखाता है कि जब अच्छी योजनाएं डिलीवरी करती हैं, तो समाज में जो असमानताएं हैं, उनको दूर करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। अपना बैंक अकाउंट होने से महिलाओं में तो आर्थिक जागरूकता तो बढ़ी ही है, परिवार में आर्थिक फैसले लेने की उनकी भागीदारी भी विस्तार हुआ है। अब परिवार कुछ निर्णय करता है तो मां बहनों को बिठाता है, उनका ओपिनियन लेता है। साथियों, मुद्रा योजना में भी लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। हमारा ये भी अनुभव रहा है, जब महिलाओं को ऋण मिलता है तो उसको लौटाने में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही प्रशंसनीय है। उनको अगर बुधवार को पैसा जमा करने की आखिरी डेट है, तो सोमवार को जाकर के दे आती हैं। उसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन, ये भी बहुत बेहतरीन है। एक प्रकार से पाई पाई जमा करा देते हैं हमारी इन माताएं बहनें। मुझे विश्वास है कि सबके प्रयास से, सबकी भागीदारी से आर्थिक सशक्तिकरण का ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है और हम सब इसको बढ़ाने वाले हैं। साथियों, आज समय की मांग है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले से ज्यादा सक्रियता से काम करे। आजादी के अमृत महोत्सव में हर बैंक ब्रांच 75 साल में उन्होंने किए हैं, उन सारे रिकॉर्डों को पीछे छोड़ करके उसको 1.5 गुना 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के चले। देखिए स्थिति बदलती है कि नहीं बदलती है। पुराने अनुभवों की वजह से ऋण देने में आपकी जो भी हिचक रही है, उससे अब बाहर निकालना चाहिए। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में, गांवों कस्बों में भी बड़ी संख्या में देशवासी अपने सपने पूरा करने के लिए बैंकों से जुड़ना चाहते हैं। आप अगर आगे बढ़कर लोगों की मदद करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की आर्थिक शक्ति भी बढ़ेगी और इससे आपकी खुद की ताकत में भी वृद्धि होगी। आपके ये प्रयास देश को आत्मनिर्भर बनाने में, हमारे लघु उद्यमियों, मध्यम वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। बैंक और जमाकर्ताओं का भरोसा नई बुलंदी पर पहुंचेगा और आज का ये
अवसर कोटि कोटि डिपॉजिटर्स में एक नया विश्वास भरने वाला अवसर है और इससे बैंकों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अनेक गुना बढ़ सकती है। अब बैंकों के लिए भी अवसर है, डिपॉजिटर्स के लिए भी अवसर है। ऐसे शुभ अवसर पर मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और उनका जो आशीर्वचन मिला है, मैं समझता हूँ कि बैंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी और वो इस अभियान में आगे बढ़ेंगे। बहुत 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 धन्यवाद सर। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री बैंक जमा राशि कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, खास तौर से जमाकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है देश के